Hello guys, today we are going to discuss how to pass TET, Maharashtra TET in the first attempt and just by doing 1 month study. Okay, so there are how many subjects are there? There are 5 subjects. If you want to pass the TET in the first attempt, you have to make a plan. Okay, so there are 5 subjects are there. So in paper 1, so first thing is you have to select the languages, first language and second language properly. My first language was Marathi and my second language was English. Okay, so you can select either Hindi or English, any one any two language you have to select. So select the languages properly. Okay, and rest child development, mathematics and environmental studies. Okay, so if you want to pass the TET exam in the first attempt and within by the study of 1 month, so you have to focus on any 3 subjects. Okay, in which you are good at, means आप जो सब्जेक्ट में अच्छे हैं वही सब्जेक्ट को आपको इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा. जैसे मैंने किया था मराठी, इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी. मतलब मेरा जो मराठी, इंग्लिश और साइकोलॉजी ये जो विषय था मानसशास्त्र, इसके ऊपर मैंने टारगेट किया था. सो यू कैन सिलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू टारगेट. So each subject have how many marks? 30 marks. But you have to score any 3 subject, you must score more than 20 marks. मतलब आपको जो 3 सब्जेक्ट आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें एटलीस्ट 20 से 30 आपको टारगेट रखना ही है. 30 भी आप यू कैन टारगेट 30 मार्क्स इन मराठी, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी. Okay, so at least you have to score more than 20 marks in these subjects, means 20 20 20. So 23 is 60. Okay, remaining maths and environment studies. So maths is quite difficult in TET as compared to CTET. Okay, so if you want to at least maths is also lengthy and it is time consuming. So how to manage maths and environment studies? Okay, for environment studies you have to read the basic books, the state board Bal Bharati textbook, history, geography, economics, science, etc. for 4th standard to 8th standard only. Okay, for maths you have to score at least 15 marks in maths, means in maths and environment studies you have to score 30 marks in these both subjects. Okay, if you not get 30 marks, at least you should get 25 marks, then you will easily going to pass in the TET paper 1. You will easily going to score in the TET paper 1. Okay, your target should be scoring more mark in any 3 subjects. Okay, I don't want to say that you have to ignore in maths and environment studies. You have to study maths and environmental studies, but at least you have to do any 3 subjects, because in the within 1 month it is impossible to cover all these subjects. Okay, so as I scored very good marks in English, Marathi, English I got 27 marks. So आप तीनों में से कोई भी जो 3 सब्जेक्ट में से आपको अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में 25 या 30 के करीब अगर मार्क्स मिलते हैं, 20 के ऊपर भी मिलते हैं, तो आपको इजी हो जाता. तो आप इजीली आप 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है, ऐसे एटीट्यूड रखना है कि मुझे कोई 3 सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करना है, और साथ में जो 2 सब्जेक्ट रहेंगे मैथ्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसके ऊपर आपको ये टारगेट रखना है कि दोनों सब्जेक्ट में मिलकर मुझे एटलीस्ट 30 मार्क्स मिलना चाहिए. 30
30 नहीं तो 25. You can get more marks in English, maths, whatever, English, Marathi or English, Hindi. Here at least you should score above 25. Then these marks will be covered here. So at least you have to score. एंड जो अभी टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूरा जो है कंटेंट बेस होता है, इसमें पेडागॉजी नहीं है. मतलब मराठी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, ईवीएस में, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑन द कंटेंट. दोज हु आर गुड एट द कंटेंट दे कैन इजीली स्कोर. जैसे मार्क्स इन लैंग्वेजेस आल्सो. और जिसका कंटेंट अच्छा है वो जैसे मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जिसका अच्छा है वो अच्छे से स्कोर कर सकता है इसमें पेपर, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें. और जिसका मैथ्स अच्छा है तो वो आप वो मैथ्स का भी आप रख सकते हैं ऑप्शन. लेकिन यहाँ पे टीईटी में मैथ्स जो पेपर होता है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि कोई अगर जिसका बहुत ही अच्छा मैथ्स है या जिसका बहुत ही अच्छा सोशल स्टडी है तो वो 2 लैंग्वेज के साथ आप मैथ्स या सोशल स्टडी को भी या एनवायरमेंटल स्टडीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं 3 सब्जेक्ट में. तो जिसका आपको अपना खुद का मालूम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है. अगर किसी का मैथ्स बहुत ही अच्छा है तो 2 लैंग्वेज के साथ वो मैथ्स को भी ये टारगेट कर सकता है. लेकिन मेरा तो सीटेट या हो या टीईटी हो उसमें आपका दोनों जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करता है. ओके उसके साथ फिर आप इसमें से तीनों में से चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं. तो जिसका अगर बहुत ही अच्छा मैथ्स है तो वो मैथ्स को टारगेट कर सकता है. किसी को अगर एनवायरमेंटल स्टडीज़ इजी लगता है कि उसमें मुझे 20 के ऊपर मैं मार्क्स स्कोर कर सकता हो या मेरा एटलीस्ट 30 तक भी जा सकता है तो वो इसको टारगेट कर सकता है. लेकिन 2 सब्जेक्ट और पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, इसको अगर टारगेट करना अच्छा रहेगा. क्योंकि मैथ्स अगर टारगेट करते हैं तो आपका मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. लेकिन अगर एक्सट्रीमली आप गुड है, मैथ्स में अच्छा है, तो आप ये 2 सब्जेक्ट के साथ मैथ्स को भी टारगेट, लैंग्वेज के साथ मैथ्स को भी टारगेट कर सकते हैं. मैंने कैसा किया था कि 2 मैथ्स, ये मराठी और इंग्लिश, और साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, इसको टारगेट किया था. और जिसमें ग्रामर का जो है, जो भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो जो भी आप सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट या जो भी रहता है उसका मतलब सभी सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही है. जैसे आपने इसमें मेंस रखा, मेन आपका जो भी 3 सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं उसका तो पूरा ही करना ही है. साथ में एटलीस्ट ये जो 2 सब्जेक्ट है आप जो भी रखेंगे 30 मार्क्स के लिए, दोनों में मिला के अगर टारगेट रखते हैं तो एटलीस्ट, और मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम उतना मार्क्स आना चाहिए. उसके लिए आप इनको भी पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं करना है या इग्नोर नहीं करना है. मतलब इनका भी आपको स्टडी करना है. साथ में जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए. जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप एटलीस्ट मतलब 50% तो भी उसमें मार्क्स आना चाहिए. जैसे मैथ्स में 30 है तो आप 15 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाए, और इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ है उसमें आप भी 15 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर पाए. मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मैं आपको मिनिमम की बात कर रहा हूँ. तो मिनिमम इतना मार्क्स आना ही चाहिए. अगर इस तरह से आप स्टडी करते तो 1 महीने के अंदर भी आप टीईटी पास हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में. ओके, थैंक यू सो मच.